پانی پت کی تیسری جنگ۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان 1761 عیسوی میں لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے اور افغانی آپ کو آج بھی احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرہٹہ سلطنت تھی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی تھی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 عیسوی تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے اور پنجاب کے اہم شہر فتح کرنے کے بعد پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹہ سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جائے گا اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوستان میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوجیں لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے بر صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا اور یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل احمد شاہ ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 عیسوی میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جخان خان اپنی اپنی نفری کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب ان کے سپاہیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد بھی موجود تھا۔ احمد شاہ ابدالی سہارنپور پہنچے تو روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 عیسوی کو جیتا جی سندھیا 20,000 لشکر لے کر
अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले पर निकल आया। एक खूनरेज मुकाबले के बाद मुसलमान फतह याब हुए और दीताजी घोड़े से गिरकर मारा गया। इसके बाद जाटों के रहनुमा राजा सूरजमिल को शिकस्त देने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने मरहटों के इस लश्कर की जानब कूच किया जो दिल्ली के आसपास दरियाए जमुना के पार मंडला रहा था। अहमद शाह अब्दाली इसे दिल्ली पर कब्जे से रोकना चाहता था, मगर मरहटा सरदार होलकर ने अहमद शाह अब्दाली का सामना ना किया। वो कभी रेगिस्तानों और कभी जंगलों में गायब हो जाता था और अचानक अब्दाली की फौज पर हमला करके फिर रपोश हो जाता था। आखिरकार अहमद शाह अब्दाली की फौज ने होलकर के लश्कर का पड़ाव मालूम कर लिया और रात की तारीकी में हमला करके मरहटों के छक्के छुड़ा दिए। होलकर ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर इस जोरदार लड़ाई में मरहटों के कई बड़े बड़े सरदार और सिपाही मारे गए। होलकर सिर्फ 300 आदमियों के साथ जान बचाकर भाग सका। दिल्ली पर कब्जे के ख्याल को तर्क करके अब वो आगरा की तरफ दौड़ रहा था। दिल्ली के गिरदो नवा को मरहटों से पाक करके अहमद शाह अब्दाली मुगलों के पाए तख्त में दाखिल हो गया। कुछ दिन वहां कयाम करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने 2000 सिपाही दिल्ली की हिफाजत के लिए छोड़े और 72 मील दूर जमुना के मशरकी किनारे पर नोब शहर को अपनी छावनी बना लिया। अब इसे मरहटों के रद्दे अमल का इंतजार था। 1760 ईस्वी का तकरीबन पूरा साल अहमद शाह अब्दाली और मरहटों की झड़पों में गुजर चुका था। मरहटे किसी मैदान में अपनी पूरी ताकत सामने ना लाए। दरअसल ये इनका तरीका जंग था कि छोटे छोटे घुड़सवार दस्तों के साथ दुश्मन पर मुतअद्दिद इतराफ से हमला करके इसकी ताकत को मुंतशिर कर दिया जाए। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान में नए इत्तेहादियों की तलाश जारी रखी और अपनी ताकत को मकामी सरदारों और नवाबों की मदद से बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। जुलाई के महीने में अहमद शाह अब्दाली ने अलीगढ़ में कयाम के दौरान ओद के नवाब शजा-उद-दौला की हमायत भी हासिल कर ली। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। नवाब शजा-उद-दौला हिंदुस्तान के ताकतवर तरीन उमरा में से एक थे। कुछ ही दिनों के बाद कंधार से 10,000 मजीद ताज़ा दम सिपाहियों की कमक भी आ गई। इस तरह फौज की तादाद 60,000 के करीब पहुंच गई। मरहटा सरदार ये कामयाबियां देख देख कर सख्त परेशान थे। वो चाहते थे कि पूना में लाखों की तादाद में जमा होने वाली मरहटों की असल ताकत जाहिर कर दी जाए और अहमद शाह अब्दाली से फैसला कुन टक्कर ली जाए। आखिरकार 3.5 लाख मरहटों का सैलाब पूना से निकलकर ग्वालियर पहुंच गया। इसके बाद जुलाई के वस्त में ये लश्कर आगरा पहुंचा, जहां मरहटा सालार, राव होलकर और जाटों का सरदार सूरजमिल भी अपनी फौज के साथ इनसे आ मिले। ये वो दिन थे जब अहमद शाह अब्दाली बुलंद शहर के करीब अनोब शहर में पड़ाव डाले हुए थे। ये बरसात का मौसम था और दरियाए जमुना तुगयानी पर था और अहमद शाह अब्दाली की फौज मरहटा फौजों को दिल्ली की जानब पेश कदमी रोकने के लिए दरिया अबूर नहीं कर सकती थी। जब मरहटा लश्कर आगरा से दिल्ली की जानब चला तो कदम कदम पर मुसलमानों की बस्तियां लूटी गईं, देहातों को उजाड़ दिया गया। हजारों मुसलमानों ने घर बार छोड़कर जंगलों में पनाह ले ली ताकि मरहटों की गारत गरी से महफूज रहा जाए। 22 जुलाई 1760 ईस्वी को मरहटों ने मुगलों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शाही खजाने में इन्हें कोई खास दौलत हाथ ना लगी, इसलिए कि मुगल हुकूमत का दवालिया निकल चुका था। अलबत्ता उन्होंने लाल किला, दिल्ली की सोने की छत उतरवा कर अपने लिए सोने के सिक्के बनवाए। उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली की शाही मस्जिद के मिंबर पर राम की मूर्ति रखेंगे, जिससे मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मरहटा सरदार भाव के साथ 3 लाख अफराद का लश्कर दिल्ली में 1 माह कयाम के दौरान खुराको रसद की कमी का शिकार हो गया। सितंबर के आखिर में भाव ने फौज को लेकर गंजपुरा पर चढ़ाई कर दी। मुसलमान बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए और खुराको रसद समेत सब कुछ लूट लिया गया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर मरहटों के कब्जे की खबर
बड़े तहम्मुल के साथ सुनी, क्योंकि वो जानते थे कि मरहटों से अनकरीब खुले मैदान में बदला लिया जाएगा। मगर गंजपुरा के मरकज़े खुराक पर कब्जा और मुसलमानों का कत्ले आम इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अहमद शाह अब्दाली ने अहद किया कि मरहटों को इस बुरी तरह कुचलेगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। उसने अपने साथियों से कहा, मैंने जिंदगी भर अपनी कौम की ऐसी तजलील नहीं देखी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने दरिया की तुगयानी को नजरअंदाज करते हुए फौज को दरिया पार करने का हुक्म दे दिया। 25 अक्टूबर को अफगान जानबाज दरियाए जमुना के ठाठे मारते पानी में उतर गए। दूसरी तरफ मरहटे ये देखकर शशदर रह गए। सदाशिवराव भाऊ 29 अक्टूबर 1760 ईस्वी को अपने लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी दरियाए जमुना अबूर करके तकरीबन 16 मील का फासला तय करके भाव के लश्कर के बिलमुकाबल आ गए थे। ये पानीपत का वही तारीखी मैदान था जहां 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मार्के ने हिंदुस्तान की तारीख बदल कर रख दी थी। पानीपत का ये मैदान एक मर्तबा फिर तारीख हिंद का एक नया बाब देखने वाला था। एक तरफ हिंदुस्तान की तमाम बातल कुएं जमा थीं, जबकि दूसरी तरफ इस सैलाब के मुकाबले में मुट्ठी भर मुसलमान जानबाज थे। पानीपत के मैदान में दोनों फरीक तकरीबन 5 मील का फासला रखकर पड़ाव डाले हुए थे। 2 माह तक दोनों फौजों में कई छोटे बड़े मार्के होते रहे। मरहटा फौज खुराक और रसद की कमी की वजह से और तनख्वाह ना मिलने की वजह से बगावत पर उतरने ही वाली थी कि भाव ने अब्दाली को सुलह की पेशकश की, लेकिन उसने पसे पर्दा जंग के लिए अपने लश्कर को तैयार कर दिया। नवाब शुजाउद्दौला मान गया था, मगर दिल्ली के नवाब नजीबुद्दौला ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि मरहटे दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर चुके हैं। इसके अलावा गंजपुरा के 20,000 अफगानों को भी कत्ल कर चुके हैं। आज अगर हमने इनसे सुलह कर ली तो कल को अब्दाली के अफगानिस्तान वापस लौट जाने के साथ ही ये ताज़ा दम अफवाज के साथ मुसलमानों पर यलगार कर देंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़त्म कर डालेंगे। ये अहम मुशावरत पानीपत के मैदान में 13 और 14 जनवरी की दरमियानी शब को हो रही थी। सुबह हुई तो हालात बदल चुके थे। सदाशिवराव भाव के लश्कर पेशकदमी कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली तेजी से अपने खेमे से बाहर निकले और बदलते हुए हालात का जायजा लेने लगे और फौरी तौर पर अफवाज को तैयार होने का हुक्म दे दिया। अहमद शाह अब्दाली के अफगान लश्कर की तादाद 26,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी। इनके साथ मुसलमान उमरा, रोहिला, नजीबुद्दौला, दोआब के अफगान और ओद के नवाब शुजाउद्दौला के 40,000 प्यादा और घुड़सवार सिपाही थे, और इनके मुकाबले में मरहटों के लश्कर की तादाद 3 लाख से ऊपर थी। आखिरकार 14 जनवरी 1761 ईस्वी की सुबह को पानीपत के मैदान में दोनों फौजों में घुमसान का रन पड़ा। ये जंग तलूहे आफ्ताब से शुरू हुई, जबकि जोहर के वक़्त तक जारी रही। रोहिला सिपाहियों ने बहादुरी की दास्तानें रकम कर दी। अब्दाली की फौज के सिपाहियों का रौब मरहटों पर छा रहा था। आखिरकार जबरदस्त लड़ाई के बाद सापहर को मुसलमानों ने 3 लाख मरहटों के सलाब को कुचल कर रख दिया। इस तारीखी जंग में 20,000 के करीब मुसलमान शहीद हुए और 1 लाख से ज्यादा मरहटे इस जंग में मारे गए। 22,000 मरहटों को पकड़कर कैदी बना लिया गया और 50,000 के करीब भागने और बस्तियों में छुपने के दौरान मारे गए। बमुश्किल 1 लाख से कम सिपाह भागने में कामयाब हो सकी। मरहटों से नफरत का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जब मरहटे शिकस्त खाकर भागे तो इनका पीछा करके इन्हें मारने में मकामी अफराद के साथ औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस शानदार फतह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पहुंचकर आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके शहजादा अली को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया और मुगलिया सल्तनत ही को हिंदुस्तान के मुसलमानों की सतूतो शौकत का वारिस करार दिया और खुद कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने से गुरेज किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तानी उमरा और सरदारों को हदायत की कि मुगलिया सल्तनत के वारिस शाह आलम सानी को हिंदुस्तान का फरमारवा तस्लीम करें।
سلطنت دہلی کے اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 عیسوی کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گئے۔